The tension, given your mind, the tension in the both parts of the string must be same. Number one. Number two, the acceleration of the both particles remains the same throughout the motion. The acceleration of the both particles remains the same throughout the motion. Number three, आपको बात याद रखनी है. The velocity of the both particles A and B will the same at every moment. The velocities of the particle, both particle will be same at the every moment. दोनों के particle की velocity हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी. कम ज्यादा इन velocity ऐसे होल चेंज हो रही होती है, लेकिन दोनों की velocity सेम है. If the velocity of B is 10 है तो A भी 10 होगी. If at a time the velocity of B is 7 है तो C की भी 7, A की भी 7 होगी. तो velocities of the particle until the string remains taut remains the same. किसी भी पोजीशन पर दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है. ये दो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं. नंबर फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, when the particles allowed to move, of course the heavier particle will move down and the lighter particle will move up with the same acceleration. And we shall apply the Newton's second law of motion on each section of the string. दोनों सेक्शंस पर ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, इन द गिवन डायग्राम, if we say the both particles are connected by means of an inextensible string and string passing over a smooth fixed pulley, and when the particles are allowed to move, the particle A will move down and the particle B will move up with an acceleration of a meter per second square. And neglecting the air resistance, assuming the pulley is smooth, find number one, the tension and the acceleration. Tension in the string T and the acceleration of the particles, which is a meter per second square. Find these. This is the first and the most important question. After this question, you will use the kinematic throughout to solve the remaining part of the question. So the first part, find the tension and the acceleration. I said in the fourth point, we shall apply the Newton's second law of motion on each part of the string. Let we consider the particle A. For the particle A, because the particle A is a heavier particle, it will move down, and because the B particle is a lighter particle as compared to A, it will move up. So for the particle A, we use the Newton's second law of motion. Second law of motion, yesterday we stated the force in the direction of motion minus the force against the motion. That means 50 minus T is equal to mass into the acceleration. The mass of this particle will be, of course, 5 kilogram. Because its weight is 50 Newton, is for 5A. This is the number one equation using the object A. By now, again, by using the object B, the B particle will move upward. The direction, force in the direction of motion is T, and the force in the against the motion is 30. So we write T minus 30. Equals to MA 3A hoga. Now there is a trick to solve these two equations simultaneously quickly. You always add the both equations, because the addition will give you the directly the value of A. If we add these two equations, the left hand side will be equals to 50 minus 30, which is 20. T will always be cancelled. Keep in your mind, if you add the both equations, T will always be cancelled and it will be equals to the 8A. And so that the value of A will be equals to 20 by 8. And this will be equals to 5 by 2, which is 2.5 meter per second square. This is the value of the acceleration. After finding the value of acceleration, if you put the value of acceleration into the either of the equation 1 or the equation number 2, if you put the value this value in the equation number 2, say
So it will give you the value of t. T minus 30 equals to 3a. What is a? Is 2.5. And so it will be the value of t, 30 plus 3 into 2.5 is 7.5. Therefore, the tension in the string is 37.5. It is the tension, its answer will be in the Newton. So we get the value of acceleration and the value of the tension in the string. It's very popular and very important question to find the tension in the string and the acceleration. We'll finish the first part of this question. If you have any question throughout this discussion till this answer, I can explain once again. Ji, any question please, Besha? सर आप नहीं एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि टेंशन जो है वो क्यों सेम होती है? Because the pulley is smooth. Pulley is smooth, therefore there is no loss of force during the motion of the pulley there, and hence the tension in the both parts of the string will be the same. ऐसा ही है जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी. पूरी स्मूथ होने की केस में टेंशन हमेशा स्मूथ होती है, सेम होती है. अगर पुली रफ होगी तो टेंशन हमेशा डिफरेंट होती है. जी, और क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू. जी फैजान, पूछना चाहते हैं आप कुछ? नहीं सर. ये पता चल गया कैसे आ गया? अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं अभी अभी तो कर लोगे? टेंशन और ए फाइंड कर लोगे? जी सर, वो आपने बस दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली फिर सॉल्व किया ना, वन और जी टू जी को. एग्जैक्टली, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. आप अपने वे से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान तरीका कि दोनों को ऐड कर दें तो टेंशन फौरन देखो कैंसिल हो जाती है. और ये जी 51 इज 30 हो जाएगा, ये दोनों का सम ये आ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाता है. ठीक ठीक हो हो गया? गया सर. ठीक. ओके. ठीक. उसके बाद इस वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि आप बता दीजिए, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे टेंशन फाइंड करने के बाद जो है ना, जो क्वेश्चन टेंशन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बाकी बचता है, वो जो आपसे पूछना चाहेगा हमेशा, वो क्या पूछता है कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग कितनी होगी, वो बता दो. तो ये कैसे फाइंड करनी? इट्स वेरी सिंपल. दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ फोर्सेस. ठीक है, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है. अब आप देखेंगे दो फोर्सेस लग रही है. अगर आप पुली को देखें तो दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है. पुली से देखें तो फ्रिक्शन टेंशन हमेशा डाउनवर्ड होती है, ये भी याद रखना है. इफ यू लुक द पुली द टेंशन इज डाउनवर्ड. आपने फिजिक्स में ऑफ कोर्स ये पढ़ा ही होगा. टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमेशा अवे होता है. तो इफ यू लुक एट द पुली, द फोर्सेस आर पैरेलल एंड downward. So the force exerted by the pulley, by the tension string on the pulley, वो यहाँ exist करती होगी. किस जगह? यहाँ लग रही होगी पुली पर. ये उसके रिजल्टेंट फोर्स होगा. दोनों फोर्सेस के दोनों के एंगल सेम है, एक ही डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट हमेशा अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो उन दोनों का सम होता है. तो सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2t. टी आपके पास ऑलरेडी था तो वो आ गया 37.5 का ट्वाइस. न्यूटन में आंसर लिख देंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में पूछा हुआ है. और टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट नहीं होती ऑन अ स्ट्रिंग. जी, अगर पुली को देखेंगे तो डाउनवर्ड ही होगी ना. पुली को देखेंगे तो डाउनवर्ड होगी, ए को देखेंगे तो अपवर्ड होगी, बी को देखें यूं होगी, वे को देखें यूं होगी. तो अवे ही होगी ना फिर. ठीक है, तो अब दोनों का ये ठीक है सम है, क्योंकि जी. दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो सम आ जाएगा. रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहे हो, दोनों फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो टोटल ही आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड. टोटल फोर्स कितनी कर रही हो आप फाइंड कर सकते हैं फौरन से. तो बहरहाल टेंशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली. सेम होती है लेकिन अपवर्ड होती है, ये भी याद रखें. समटाइम्स एग्जामिनर ये भी पूछ लेता, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली, वो सेम होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड होगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर. तो उसके बाद में क्वेश्चन पार्टिकल से रिलेटेड ही बाकी रह जाते हैं. और पार्टिकल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके माइंड में लाजमी होने चाहिए. सोल्यूशन आ ही जाता है, क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए. क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, क्या कैसे कैसे आपसे प्रूफ मांग सकता है, ये सारी बातें आपको लाजमी पता होनी चाहिए. ओके, चलते हैं जी क्वेश्चन के इनिशियल पोजीशन पर वंस अगेन बिफोर रिलीजिंग द पार्टिकल्स.
क्या सिचुएशन थी? दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो थी, दे वर एट रेस्ट. When they released, they move with this acceleration, it move upward with this acceleration, it move downward with this acceleration. अब क्या है कि आपके पास एक्सेलरेशन भी है दोनों पार्टिकल्स का, इनिशियल वेलोसिटी भी है दोनों पार्टिकल की, दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है. तो याद होगा कि जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स स्टार्ट करवाई होगी तो मैंने लाजमी आपको बताया होगा, तो काइनेमेटिक्स इसके अलावा कुछ नहीं है कि 5 वेरिएबल्स होते हैं, ये x, a एंड t. इनमें से आपको हमेशा 3 गिवन होते हैं और 2 फाइंड करने होते हैं. अब आपके पास 2 गिवन है, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये तो 2 गिवन है, आपको कौन कौन से गिवन है? ए गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन. अब बाकी ये जो 3 वेरिएबल बच गए, इनमें से कोई एक दे देगा, कोई एक दे देगा, बाकी 2 लाजमी पूछेगा. मसलन फॉर एग्जांपल वो ए के साथ कहता है जी फॉर द पार्टिकल ए फर्ज कीजिए ए की फाइनल वेलोसिटी दे दी उसने, फाइनल वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड. जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी उसने दे दी. तो आपसे वो कहेगा जी आप बताइए ये डिस्टेंस कितना था, आपसे बताया पूछेगा कि ए कितने टाइम में यहाँ पहुंचता है. फर्ज कीजिए वेलोसिटी नहीं देता तो ये डिस्टेंस दे देता है. डिस्टेंस अगर दे देता है तो आपसे वो पूछेगा पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंचा, या फिर इसी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या है वो पूछ सकता है आपसे, अगर डिस्टेंस उसने दे दिया तो. लेकिन तीसरी बात, अगर उसने टाइम दे दिया है तो फिर आपसे क्या क्या पूछ सकता है? वो फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है ए की, और उसके बाद ये डिस्टेंस पूछ सकता है. 3 बातें हैं, हम तीनों पार्टिकल पार्ट्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे. नंबर 1, इफ हम कहते हैं जी इफ द when the particle A reaches the ground, just before it reaches the ground, its velocity was let 2 meter per second. ठीक है, तो फाइंड करना आपने, फाइंड नंबर A the initial height of the A from the ground. I am saying it is x. आप पूरा वर्ड में लिखिए, initial height from the ground and the time taken for the A to reach the ground. 2 बातें पूछी गई हैं ए से. आपको गिवन क्या था? वेलोसिटी गिवन थी आपसे, इनिशियल हाइट ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड एंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल ए टू फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपसे पूछा गया. अब आप क्या करेंगे? आपके पास अब 1, 2 और 3 वेरिएबल आ गए, आपको इनिशियल हाइट चाहिए. तो आपके लिए आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करें, 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. It will give you 2 into 2.5 x. V square is v is the 2 square minus 0 square, and it will give you the height which is 4 divided by 5, है ना? 4 by 5 आ गया 0.8 meters. ये उसकी इनिशियल हाइट थी ग्राउंड से. ओके, दूसरा पार्ट है कि आपसे टी पूछा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला. तो ये इसमें फाइनल वेलोसिटी आपके पास 2 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये 2.5 a है. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हिच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2.5. ठीक है, तो ये आएगा 4/5 पॉइंट, चलो 4/5 लिख देते हैं, ये सेकेंड्स टाइम आ जाएगा. इट मीन पार्टिकल जब आप रिलीज करेंगे ये 4.5 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी 2 होगी, और ये वाला डिस्टेंस 0.8 है. तो ये 5 के 5 वेरिएबल का सेट पूरा होगा. सर यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों ली है? हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं है, वो गलती से लिखा गया. जी ठीक सर. हो गया. अच्छा, एंड वाइस वर्सा. आप प्रैक्टिस के लिए ऐसा जरूर कीजिएगा कि दूसरा केस मैं बना देता हूँ, लेकिन करना आपने खुद ही है. लेट द सी पार्ट इसको कह देते हैं हम. ठीक है, if the initial height of the particle from the ground which was x 1.53, ठीक है, meters. If the initial height of the particle from the ground, ये लिख लिया करें क्वेश्चन. If the initial height of the particle A from the ground was this, find number 1 क्या find करना है? The velocity it with it hits the ground,
एंड नंबर 2 फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए डिस्टेंस दे दिया गया है, वेलोसिटी पूछनी, फिर से वही काइनेमेटिक शुरू हो जाती है। सी डी पार्ट इसका यूं बना लीजिए, इफ नाउ द टाइम इज गिवन, लेट आई एम यूजिंग 1.5 second. After the time equals to 1.5 seconds, the particle reaches the ground. ठीक है, तो फाइंड क्या करने को कहेगा एग्जामिनर, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गई, आपसे वेलोसिटी फाइंड करने को कहेगा या आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करने को कहे, वो टाइम फाइंड कर, डिस्टेंस फाइंड करने को कह देगा। तो फाइंड करेंगे number 1 find the distance from the ground and number 2 find the velocity with it hits the ground। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताने लगा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पिछले कोई, मेरा ख्याल है कि जहां तक मुझे पता है कि पुलिस के क्वेश्चन 90 से बल्कि 80 से चले आ रहे हैं, पुलिस का सिलेबस कभी भी सिलेबस से खत्म आउट नहीं हुआ। तो जितने आज तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आपका पुलिस वाला ये केस होगा तो एग्जामिनर हमेशा ए एंड टी पूछता है। पहला पार्ट आपसे टेंशन और एक्सेलरेशन पूछता है हमेशा। दूसरे पार्ट में ये जो मैंने बताया कि ये वेलोसिटी देगा तो ये दो चीजें पूछेगा, डिस्टेंस देगा तो ये दो चीजें पूछेगा, टाइम देगा तो ये चीजें दो। आपके पास जितने भी पुलिस क्वेश्चन है, बेशक आप हजारों बुक्स ढूंढ लो, हजारों बोर्ड्स के पेपर देख लो, पूरी दुनिया में कितने भी बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में कितने बोर्ड हैं, सारे बोर्ड के मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखो तो हमेशा इसके अलावा सवाल ही नहीं होता कोई। या ये होगा, ये गिवन होगा तो ये दो चीजें पूछी जाएंगी, ये गिवन होगा तो ये दो पूछी जाती हैं, ये गिवन होगा तो ये दो पूछी जाती हैं। आप बेशक मैकेनिक जितने मर्जी पुलिस के क्वेश्चन देख लो, वो यही पूछता है और आपसे कुछ पूछता ही नहीं है। जी, कोई सवाल है? फैजान ये सी और डी लिख लो अपने में, ताकि मैं ये ए पार्ट के साथ ही आगे चलना चाहूंगा। ठीक है, जी सर लिख दिए। ए पार्ट के साथ चलना, जो सी डी के जब होंगे तो आप खुद ही इस पर फर्दर क्वेश्चन जो बनेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बन सकते हैं। तो मैं आई एम अज्यूमिंग the final velocity was given and we have found the value of the distance from the ground, वो भी फाइंड कर लिया हमने। और फिर हमने टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड वो भी फाइंड कर चुके हैं हम। ये दो चीजें, टाइम आपके पास आ चुका है, टाइम जितने देर में ये पहुंचा था वो 4/5 सेकेंड्स थे, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। और इसके अलावा हमने ये डिस्टेंस भी बता चुके हैं कितना है, 0.8 मीटर। चल अब सिचुएशन जरा डिस्क्राइब कर लें, एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी एज सून एज द पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? तो उस सिचुएशन को जरा हम ड्रॉ करना चाहेंगे, ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहेंगे। आप क्या चीज सीन उसको नजर आ रहा होगा आपको, जो ही पार्टिकल ये ग्राउंड से हिट कर रहा होगा उस वक्त, अगर आप माइक्रो कैमरा से इसको देखें, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड कैमरा से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा सीन नजर आएगा जैसे ये पुली थी। आप अपने इमेजिनेशन में लेकर आइएगा कि कैसा सीन नजर आता है। जो ही पार्टिकल एट द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड, मैं सिर्फ उस एक मोमेंट को, इस एक पल को ड्राइव करना चाहता हूं। अगर आप बहुत स्लो कैमरा से देखेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ नजर आएगा उस वक्त। एज सून एज द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये उस मोमेंट की पिक्चर है जब ये जाके ग्राउंड से हिट कर रहा। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, मूवीज में स्लो मोशन दिखाते हैं कि कोई बंदे ने जनाब अपने बाल झटके तो उसके बालों से पानी कैसे बाहर निकल रहा होता है। और कभी कभी ये दिखाते हैं कोई चीज अगर ब्रस्ट हुई है तो ब्रस्ट होते हुए उसमें से क्या क्या पिक्चर बन रही होती है। तो ये वही पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है जब ये पार्टिकल ग्राउंड से हिट हो रहा।
ये उस वक्त की पिक्चर, वो एक लम्हे की पिक्चर। ये क्या शो करने की कोशिश करें, जो ही जाके ग्राउंड से हिट होता होगा तो स्ट्रिंग एकदम से लूज हो गई होगी, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी 2 थी। एट दैट मोमेंट इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, जब ये ग्राउंड से हिट हो रहा था। और ये क्योंकि थ्योरी में बताया गया है कि ए और बी की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, जब इसकी 2 थी तो इसकी भी वेलोसिटी वो 2 थी, और स्ट्रिंग इस मूवमेंट पर लूज हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से स्ट्राइक किया, तो ऐसा ही है कि स्ट्रिंग लूज हो गई होगी, ये भी पार्ट उसका लूज हो गया हो, क्योंकि ये लूज हुई तो सारी लूज हो गई। फर्दर सिचुएशन केस में राइज हो रही है, ये पार्टिकल 0.8 मीटर नीचे आया है, यूं ये पॉइंट इस पोजीशन से 0.8 ऊपर चला गया। इसका मतलब है इसकी जो पोजीशन है अब ग्राउंड से 1.6 मीटर से, और ये क्योंकि ग्राउंड पर, ये इनिशियली दोनों पार्टिकल इस लेवल पर थे, तो ये पार्टिकल ऊपर गया 0.8 और ये 0.8 नीचे आया, क्योंकि इसकी इनिशियल हाइट 0.8 थी ग्राउंड से। तो इस वक्त इसकी हाइट ग्राउंड से इतनी है। तीसरी जो सिचुएशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अभी ये पुली से काफी नीचे है, तो अज्यूम कर रहे हैं ये पुली से प्री पहुंचने से पहले पहले इसकी ये रुक जाएगा, कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से डिसेलरेशन होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये कहा फाइनली इट विल कम्स टू रेस्ट बिफोर द पुली आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन से एच, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। Just after the particle A hits the ground, it will move under gravity. ये आपको याद जरूर रखना है, just after this particle hits the ground, it will move under gravity. ये under gravity move करेगा फिर। अब सिचुएशन हमेशा एग्जामिनर बी पार्टिकल के बारे में ही कुछ सवाल करता है, ए के बारे में बाद में सवाल करना बंद कर देता है। ए के बारे में सवाल यहीं तक था कि ग्राउंड तक ये पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, या इसका टाइम क्या था, या इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तीन बातें ये तीनों हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। तो अब उसके बाद इसका इसका सीन खत्म हो जाता है, ए का बिल्कुल सीन खत्म हो जाएगा, सिर्फ बी के बारे में सवाल पूछेगा। अब सवाल ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने चाहिए। नंबर एक, बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जस्ट आफ्टर ए हिट्स द ग्राउंड, तो आंसर है कि जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचा वही बी की वेलोसिटी। दूसरा सवाल बनता है कि बी अगर अपवर्ड मूव करेगा तो ये स्लो डाउन ऑफ कोर्स होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आंसर है कि इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स -10 लेंगे इसको, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। अगला सवाल बनता है कि अगर ये जाएगा तो कितना ऊंचा जाएगा, कि एच कितना फर्दर हाइट कितनी अटेन करेगा, वो कैसे फाइंड करना है, वो भी आपके सवाल का हिस्सा बन सकती है। नंबर तीसरा सवाल आपका ये बन सकता है कि जस्ट आफ्टर बी ए हिटिंग द ग्राउंड, तो ये हाउ मेनी सेकेंड इट विल टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए होगा, ये टाइम पूछा जा सकता है। जाहिर है जो वेरिएबल अननोन है वही पूछे जाएंगे आपसे, दूसरा तो पूछा नहीं जाएगा। ये तीसरी बात, एग्जामिनर नॉर्मली ये कह देता है कि बी पार्टिकल यूं ऊपर जाएगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस आ जाएगा यहाँ। जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स यही वंस अगेन यही 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो एग्जामिनर नॉर्मली सवाल ये पूछता है इसको ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑफ कोर्स वो आपने एच फाइंड किया, उसका ट्वाइस हो जाएगा, जो ऊपर गया फिर नीचे आया। तो आपसे वो डिस्टेंस ट्रेवल पूछ लेता है व्हाइल द इट वाज एट रेस्ट, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। या फिर ये पूछ सकता है द टाइम फॉर विच इट वाज एट रेस्ट, ये मीन ये इसके यहाँ जाने का और यहाँ आने का टाइम पूछा जाता है। इसके अलावा सवाल कोई पेपर में आज तक मैंने नहीं आया। क्या मतलब, नंबर एक वो पूछ सकता है ये हाइट कितनी है, नंबर ये पूछ सकता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग गया। चलिए हम पहले हाइट फाइंड करते हैं। हाइट सर फाइंड जो करने वेलोसिटी वो हमेशा सेम होगी दोनों की, जैसा यहाँ पे आपने बताया जी, है। वेलोसिटी जिससे इसने हिट किया होगा इसकी वेलोसिटी इसी हाइट पर 1.6 मीटर हाइट पर सेम होगी, 2 होगी, और उसके बाद फौरन बाद बदल जाएगी। फौरन बाद बदलने का ठीक मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। तो ठीक। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो इसकी जीरो होगी। आई वांट टू फाइंड द हाइट, तो हम ये फॉर्मूला यूज करें 2ah इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला -10, ये यूज कर रहे हैं,
क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। और यू दूसरा कह लें कि ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनती है इस वक्त ये 2 मीटर पर सेकंड वो अपवर्ड है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 2 होगी, तो आपके पास एच आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/5 मीटर्स आ जाता है। 1/5 it is 0.2 meters. So this is the height attained by the particle just after A hits the ground. A के ग्राउंड को हिट करने के बाद कितनी हाइट ऊपर जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ये 0.2 मीटर है। या सम टाइम एग्जामिनर कहता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल बी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो जाहिर है वो 1.6 तो ऑलरेडी थी प्लस ये हो जाएगी। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट अगर वो पूछता है तो आपने ये वाली 1.6 में ऐड करना है 0.2 को, तो ये आ जाएगी टोटल हाइट 1.8 मीटर। एग्जामिनर कभी कभी सिर्फ ये पूछ के छोड़ देता है, सवाल का पीछा बंद कर देता है, और समटाइम्स वो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछ लेता है। तो वो ऑब्वियसली आपके माइंड में बात जरूर होनी चाहिए, ये 1.6 थी, ये भी 1.6 है, तो टोटल हाइट ये बन जाएगी, ये 0.2 आ गई, 0.8 और 0.2 विच इज 1.8 मीटर हाइट बन जाएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन करके एग्जामिनर पीछे हट जाता है। या फिर सर ये वी स्क्वायर हमने उसका लिया ना ए का, जब वो रेस्ट पे आ गया हिट करके। क्या चीज, जो वी स्क्वायर है हमने जो जीरो लिया है, ये हमने एक का लिया ना जब वो रेस्ट पे आ गया नीचे हिट करके। ये वाला जीरो जो लिया है जी जी जी। बेटा, हम पार्टिकल बी की बात कर रहे हैं, आप ए की बात कर रहे हैं। सर बी का फिर वी जीरो तब होगा जब वो ऊपर मतलब रेस्ट पे चला जी, जाएगा। हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बी यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, हम ए को तो छोड़ दिया, मैंने आपको पहले कहा था ए का वो पीछे ही छोड़ देता है, ए के बारे में सवाल ही नहीं करता, लेकिन ए को यूज करता है वर्ड्स में। मसलन ए को वर्ड्स में कैसे यूज करेगा, while A was at rest on the ground and the particle B moves upward, find the distance attained by the particle B। ए को इस सेंस में यूज करता है। या while the A was at rest on the ground, ठीक है, find the time taken by the particle B to attain its maximum height। या ये कहता है कि फाइंड द टाइम फॉर विच ए वाज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब बी यहां से जाके वापस जब तक आता है। ये 3 किस्म के सवाल पूछता है वो, लेकिन सवाल सारे बी के से ही रिलेटेड है। ए का साथ नाम यूज करता है, सिर्फ ए का ठीक नाम है। यूज करता है, सवाल वो बी पर करता है, ये याद रखना। हाँ, आम में पंजाबी में कहावत है, क्या कहावत है पंजाबी में, जनानियां तीन की कहते हैं, जनानियां नौ नू ते कहनियां तीन। इस तरह यही होता है ना जुमला, घरों में अक्सर माएँ बोलती हैं। तो बात ये है कि सवाल वो बी के बारे में ही करता है, लेकिन नाम ए का ले लेके कर रहा होता है, क्योंकि ताल्लुक ए के साथ भी है ना उसका। तो ए को कहता है कि ए कितनी देर के लिए जमीन पर रेस्ट पर था, उसका कहने का मतलब बी यहाँ से जाके यहाँ कितनी देर में वापस आ गया। The height attained by the bee while A was at rest on the ground, तो ये वाली पूछ लेता है। अब मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल व्हेन इट द बी ए वाज एट द ग्राउंड, इस तरह के सवाल करता है। तो आपको ये सारी बातें बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ मैं, ये सारी की सारी आपको बड़ी डिटेल से ही याद होनी चाहिए। मैं इसीलिए ना इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, आफ्टर दिस आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो होगी क्लियर कि वो क्या क्या चाहता है यहाँ पर, क्या क्या चाहता है। इसके हिट करने के बाद, ए के हिट करने के बाद वो हमेशा एग्जामिनर सवाल क्या क्या बनाना चाहता है, यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या थी वो पूछ लेता है बास बात। ऑब्वियसली जिससे ये हिट करेगा उसी की यही से वेलोसिटी होगी। और उसके while ए वाज एट रेस्ट हाउ मच इट अटेन फर्दर हाइट अप द ग्राउंड, वो हमने फाइंड कर लिया। या ये पूछेगा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो टाइम के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए जीरो ले रहा हूँ, अब बी जीरो ले रहा हूँ, ए का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 और -10t, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बी टू अटेन मैक्सिमम हाइट, ठीक है, आफ्टर द ए हिट्स द ग्राउंड, इस तरह टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ जाने। ओके,
तो मैक्सिमम, तो अब ये क्वेश्चन अगला सवाल कहता है कि पार्टिकल को वापस आने में भी सेम टाइम लग जाता है, तो टाइम फॉर विच, आप लिख लें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट बात है, टाइम फॉर विच द string was select, select का मतलब लूज होता है, द टाइम फॉर विच द स्ट्रिंग was select, select का मतलब लूज, ये ऊपर जाएगा लूज है, वापस आएगा लूज है, जब वापस आएगा फिर स्ट्रिंग एक बार दोबारा टाइट हो जाएगी। तो यानी कि पार्टिकल का ऊपर, यहाँ से ऊपर जाके नीचे आने का टाइम पूछ रहा है वो, या ये कहता है कि टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट ए remains stationary, या remains in the state of rest on the ground, on the ground। तो जाहिर है कि जब पार्टिकल ये ऊपर जाके वापस यहाँ आएगा तो ये ग्राउंड से दोबारा जंप करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग दोबारा टाइट हो जाएगी। तो वो ये कहता है कि स्ट्रिंग के टाइट होने से पहले पहले का कितना टाइम है वो बता दीजिए, स्ट्रिंग कितने देर के लिए लूज रहती है वो बता दीजिए। मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो इसका आंसर सबका एक ही है। आंसर क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से वापस आने का टाइम टोटल कितना है, तो वो हमने टाइम तो निकाला 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड का ट्वाइस करो तो 0.4 सेकेंड आ गया। सो इट इज द टाइम फॉर द पार्टिकल A move up and come back to this position. या time for which the particle A was at rest on the ground, या फिर time for which the string remains loose or slack, ये आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर पेपर में जरूर पूछता है कि अगर जब भी ये पुली वाला सवाल होगा यही सवाल पूछे जाते हैं। आप एक क्वेश्चन से इसकी मास्टरिंग कर लो, आप चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके में इसकी मास्टरिंग करो, सवाल यही बनते हैं, वर्ड्स बदल जाते हैं, डायग्राम बदल जाती हैं, या फिर यूं कह ली मैसेज चेंज हो जाएंगे, लेकिन सवाल नहीं बदलेगा, सवाल यही रहेगा। दैट्स इट, इसके अलावा सवाल होता ही कुछ नहीं है। बेशक आप 50 सवाल देख लो, यही चंद सवाल हैं जो पेपर में आते हैं। जी, एनी क्वेश्चन टिल है, और आखिरी इसका कॉन्सेप्ट रह गया, वो करवाता हूँ। नो सर। कोई सवाल है माइंड में? बेटा आपके साथ मैं अभी सवाल शेयर करूंगा अगर कोई, ठीक है ना? तो इन सवालों में से फिर कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो आप कहें ये अभी नहीं आता। कोई नया सवाल होगा तो वो जरूर पूछें, लेकिन अगर ऐसा ही सवाल हो तो मेरा ख्याल है कि आपको खुद से ही आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ, इतना ज़्यादा बार रिपीट करो कि आपको सवाल देखते ही जवाब माइंड में आ जाए कि इसको तो करना ही ऐसे था, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो आपके लिए मसला नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, आखिरी पार्ट जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है, जिससे बच्चे बहुत भागते हैं, वो कहता है जी फॉर द होल मोशन sketch the velocity time graph of the both particle on the same sheet of paper for the motion of the particle B from the start till the string once again become taut। यहाँ से लेकर जब मोशन पार्टिकल की शुरू हुई थी, वहां से लेकर पार्टिकल ये नीचे आया, ये यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से ये वापस आया, ये आपने आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है। तो इसमें 3 किस्म के टाइम्स डिस्कस किए गए। नंबर 1 टाइम तो डिस्कस किया गया कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंचा, द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, एक ये वाला टाइम T1 कह दीजिए इसको। द टाइम फॉर विच द पार्टिकल रीच द ग्राउंड, ये हमने फाइंड किया था, याद है आप लोगों को कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचा था? मैंने रेज कर दिया, यहाँ लिखा हुआ था, रेज कर दिया।